Friends, today we see question number 5 of exercise 8.4 और उस क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं जो कि आइडेंटिटीज है. एंड द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू शो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 cos q theta minus cos theta is equal to tan theta. Okay, so we start to solve this from the LHS. Your LHS is here, sin theta minus 2 sin q theta by 2 cos q theta minus cos theta. Okay, so from this and this we can take sin theta common. So here at the place of sin theta 1 will be left, and at the place of 2 sin q theta this is minus 2 sin square theta. Okay, similarly from this and this term we can take cos theta as common, and here you see that this is 2 cos square theta minus 1 will be left. Again from the third step, this is sin by cos. At the place of the 1 we can write sin square theta plus cos square, because we know that the formula what sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This I have already given, this formula I have already given you. Okay, so at the place of 1 we write sin square theta plus cos square, and this is minus 2 sin square theta. Okay, so here is 2 cos square theta, I have written here, minus sign. Again at the place of the 1 we can again write under bracket sin square theta plus cos square theta. Okay my dear, so after solving you will get sin by cos. Here cos square theta is positive, and sin square theta minus 2 sin square theta is equal to minus sin square theta. Okay, this is 2 cos square theta minus plus minus sin square theta minus plus minus cos square theta. Okay, so sin by cos, this cos square theta minus sin square theta, cos square theta minus sin square theta, these two terms will be cancelled, and finally we have sin by cos which is equal to tan, and this is your right hand side. Clear? तो आपने देखा यहाँ पे कैसे हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को. दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. ओके, व्हाट इज गिवन? वी हैव टू शो 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए. तो मैंने आपसे कहा था कुछ आइडेंटिटी के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, और तब आपका वो वेरीफाई होता है. सो फर्स्ट वी सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज 1 प्लस ए के बाई सेक ए. तो मैंने कहा था कि अगर साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा टी रेशियो हो, सो फर्स्ट चेंज द गिवन टी रेशियो इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, यानी कि जो गिवन टी रेशियो आपका दिया हुआ है उसको साइन और कॉस के टर्म में आप चेंज कर दो. सो 1 प्लस एट द प्लेस ऑफ द सेक ए वी कैन राइट 1 बाई कॉस. सिमिलरली अगेन एट द प्लेस ऑफ द सेक ए वी कैन राइट 1 बाई कॉस. इफ यू सॉल्व इट then finally you will get cos a plus 1. Clear? Okay, next after solving the left hand side you get cos a plus 1. Now start solving sin square a by 1 minus cos a. So sin square a by 1 minus cos a, at the place of the sin square a we can write by using formula 1 minus cos square a, because we know that the formula साइन स्क्वायर ए जो आपका होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है. तो जहाँ पे साइन स्क्वायर ए है उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका ऑलरेडी 1 माइनस कॉस ए है. क्लियर? अब ये जो आप देख रहे हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो आपका है ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है. तो आप जानते हो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. Okay, and this is 1 minus cos a. 1 minus cos a, 1 minus cos a cancel, and we have 1 plus cos a. So after solving right hand side again we get 1 plus cos a. We solved left hand side and we get cos a plus 1. So here we see that left hand side is equal to right hand side. Clear my dear? Okay, next we solve question number 10. And this is the last question. Remaining you can solve by yourself also, because remaining questions are very simple, and this 10 number is also VBI. Okay, what's the question is? This is 1 plus tan square a by 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a by 1 minus cot a to the power 2. Okay, so let's start to solve through the LHS. Okay, your LHS is 1 plus tan square a 1 plus cot square a. Okay, so as we know that the formula 1 plus tan square a means what? Sec square a, and 1 plus cot square a is equal to cosec square a, because I have already given the formula in my previous class कि जो आपका 1 plus tan square a जो होता है 1 plus
tan स्क्वायर ए जो आपका होता है ये आपको कितना होता है, sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। और जो आपका 1 प्लस cot स्क्वायर ए जो होता है ये बाबू आपका cosec स्क्वायर ए के बराबर आपका होता है। क्लियर माय डियर। तो आपका क्या आया है, sec स्क्वायर ए बाई cosec स्क्वायर ए। अब आप जानते हो कि जो sec थीटा जो होता है ये 1 बाई cos थीटा के बराबर होता है, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वैसे ही जो आपका cosec थीटा होता है ये आपको 1 बाई साइन थीटा होता है, या साइन को आप 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, बिकॉज साइन एंड कॉसेक बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ each other. So here we get sec square by cos square a. So again at the place of the sec square a we can write 1 by cos square a, and at the place of the cosec square a we can write 1 by sin square a. तो यहाँ पे भी आपको a बाई बी बाई सी बाई डी के टर्म में मिला। तो आप जानते हो फोर्थ वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करोगे तो आपका साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर आया। और आप जानते हो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है, साइन बाई कॉस जो होता है ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आपका टेन स्क्वायर ए आया है। ओके, वैसे ही अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो व्हाट इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो मैंने बताया था कि जब कोई भी दिमाग में आइडियाज नहीं है हाउ टू प्रोसीड द स्टेप ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, देन जस्ट कीप वन थिंग इन द माइंड, इफ अदर टी रेशियोज आर गिवन देन चेंज द टी रेशियोज इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। यानी कि अगर साइन और कॉस के अलावा टी रेशियो दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको साइन और कॉस के टर्म में आप चेंज कीजिए। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस टेन है, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। टेन के जगह पे आप साइन बाई कॉस लिख सकते हो, कॉट के जगह पे आप कॉस बाई साइन लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, फिर आपका साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व क्या करना है, अगेन ये ए बाई बी बाई बाई सी बाई डी के टर्म में है। तो जानते हो कि फोर्थ वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई किए, जो मैंने यहाँ पे किया है। तो आप देख सकते हो कि ये साइन ए जो है ये ऊपर आके कॉस ए माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई हो गया, और जो ये आपका कॉस ए जो था वो इसके साथ आपका मल्टीप्लाई आपका हो गया। देख सकते हो आप इस चीज़ को कि ये कॉस ए माइनस साइन ए के साथ साइन ए मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए, देखिए अच्छा से थोड़ा सा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, और इसका ये स्क्वायर है। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लीजिए कि अगर आपका a इंटू बी का स्क्वायर हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना सर, कि सर मेरा a स्क्वायर भी होगा और b स्क्वायर भी होगा। ओके, तो वैसे ही ये आप देख रहे हो कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरे का होल स्क्वायर आपका है। तो ये होल स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी होगा, जो मैंने यहाँ पे किया है कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर इंटू फिर साइन ए का स्क्वायर करोगे आप तो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। वैसे ही साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर इंटू कॉस ए का स्क्वायर करोगे तो ये आपका कॉस ए हो जाएगा। फिर आप ये टर्म और ये टर्म जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आपका कंप्लीटली आपका ये कट जाएगा, बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपका होता है टेन स्क्वायर ए। और इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व होता है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.4 का मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपका कल के वीडियो में आ जाएगा। और आपसे एक बात और बोलनी थी कि जिस लेसन तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, जस्ट कंप्लीट द लेसन इन योर फेयर कॉपी, बिकॉज वंस द स्कूल विल ओपन देन आई विल डिमांड योर फेयर कॉपी, एंड दोज विल नॉट कंप्लीट दे विल नॉट गेट द internal assessment marks. So it is inform all the students of 10th A that you should complete your copy up to the lesson which is discussed and which is taught by me. Okay my dear, thank you.